हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा प्लैनेट। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सबसे पहला टाइप रेंज इन बायोस्टैटिस्टिक इन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में कंसीडर किया था टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से। फर्स्ट वन रेंज, देन इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। नाउ व्हाट इज रेंज? रेंज दैट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द सैंपल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई डेटा है तो उस डेटा में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ आवर डेटा। द रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज is known as the coefficient of range. Mathematically, if h is the highest value and l that is the lowest value, then we can say the range r that is equals to h minus l, and the coefficient of range that we can find out with the help of the equation h minus l divided by h plus l, where h that is the highest value and l that is the lowest value. Now, for example, we have the two data set. For example, we have one, this is data set 1 and data set 2. Now in this category, if you will determine the range, then in data set 1, what is the highest value? 38, that is the highest value. So 38, then that is equals to h, and the lowest value that is the 20. Now if we are determining the range for this data set 1, then it is found that 38 minus 20 that is equals to 18. That means 18, that is the range for the data set 1. Now for data set 2, the highest value from this table that is 52 and lowest value that is the 11. That means the data set 2 that has the range of 41. That means highest minus lowest that is equals to 41. Now on the basis of these two data set, that means if we are comparing this data set 1 and data set 2 it has the broader range and hence we can say it has the more variability. मतलब यहाँ पे वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, जो भी हमारे पास डेटा है उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रेंज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेटा सेट 1. दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेंज वी कैन फाइंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा. नाउ कैलकुलेट द रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द HB हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ द 10 पेशेंट. यहाँ पे डेटा दिया है 9.1, 8.3, 9.6, 12.3, 10.2, 11.3, 9.6, 13.2, 10.1 एंड 9.7. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है वो डिटरमाइन करनी है. हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है 13.2, लोएस्ट वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 8.3. नाउ विल डिटरमाइन द रेंज ऑन द बेसिस ऑफ दिस h minus l. डायरेक्टली वी हैव टू अप्लाई द इक्वेशन. सो द आंसर विल बी द 4.9. देन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, the equation is h minus l divided by h plus l. So directly we can apply the data over here. 13.2 minus 8.3 divided by 13.2 plus 8.3. So we will have the answer 0.2279. So by this way we can determine the range. Then second one, that is the interquartile range or quartile deviation. The interquartile range of a group of observation is the interval between the values of the upper quartile and the lower quartile of that group. Now here यहाँ पे हमारे पास दो नए शब्द है, अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल. तो कोई भी डेटा यहाँ पे आप फिगर में देखिए, कोई भी डेटा है हमारे पास, अगर उस डेटा को हम चार इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 25, 25, 25 एंड 25, चार इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, देन the upper quartile that will be a group that is the value above which 25% of the observation fall. That means upper quartile, that means of a group that is the value that has above which 25% of the our observation that will false. That means we can say over here Q3 that is the upper quartile. Then the lower quartile is the value below which 25% of the observation that will false. मतलब यहाँ पे Q1 that is the lower quartile और इसके नीचे हम कह सकते हैं below that there is a 25% वैल्यू. तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा है तो यहाँ पे 25% वैल्यू यहाँ से निकल गई,
यहाँ से 25% निकल गई, तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, इट इज द इंटरवल बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल। तो हमारे पास कितनी वैल्यू रह जाएगी, 50% वैल्यू विल बी ओवर हियर। दैट मीन्स दिस मेजर इट विल गिव अस द रेंज विच कवर्स the middle 50% of the observation in the group. That means 25% plus 25%. So if we are considering the lower quartile, that is the Q1, and the upper quartile, that is the Q3, then we can say interquartile range, that is equals to Q3 minus Q1. Then quartile deviation, that is equals to 1 by 2 Q3 minus Q1, and the coefficient of quartile deviation we can determine with the help of this equation, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Now we will take, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है वो क्लियर हो जाएगा। Now example, that is calculate the interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation from the following table which gives the height of the student। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें स्टूडेंट की हाइट्स के बारे में यहाँ पे इंडिकेट किया है। Now there are 21 students which has the height in each, that is 58, likewise 25 students, that is for 59, and up to that the data has been given over here। Now तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके बेसिस से ऊपर से हमें Q1 क्वार्टाइल 1 एंड Q3 दैट अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल दैट वी हैव टू डिटरमाइन। जो यहाँ पे जो डेटा है उसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर से हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल डेटा हमारे पास है दैट इज फॉर 199। नाउ वी विल डिटरमाइन द Q1। नाउ द Q1 फॉर दिस इक्वेशन इज साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल डेटा हमारे पास कितना है 199 यहाँ पे लिखेंगे +1 डिवाइडेड बाय 4। दैट मीन्स द साइज ऑफ 50th आइटम। साइज ऑफ 50th आइटम हमें देखने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे तो 46 और उसके बाद 74 आता है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये 50th आइटम हम कह सकते हैं, तो इसके ऊपर से लिख सकते हैं कि Q1 दैट इज इक्वल्स टू 60। नाउ वी विल डिटरमाइन द Q3 दैट इज द साइज ऑफ 3/4 इंटू n+1 आइटम। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता है 199 + 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे जो आएगा वो रिजल्ट आएगा 150th आइटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके बेसिस के ऊपर हम देखेंगे तो x की वैल्यू या फिर यहाँ पे Q3 दैट विल बी 64। Now we have two data Q3 and Q1. On the basis of that we can determine the all the question जो भी यहाँ पे हमें दिया गया है। So first we will determine interquartile range। Interquartile range equation हमारे पास है Q3 minus Q1 is equals to 64 minus 60 equals to 4। Then semi interquartile range or that is also known as a quartile deviation is equals to 1/2 Q3 minus Q1। यहाँ पे सीधी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 2। एंड थर्ड वन दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू Q3 minus Q1 डिवाइडेड बाय Q3 plus Q1। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आंसर मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 124 दैट इज इक्वल्स टू 0.032। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे पास डेटा है उसके लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन है दैट वी कैन फाइंड आउट। सो इस वीडियो में हमने यहाँ पे कंसीडर किया टाइप्स ऑफ मेजर में range and interquartile range or quartile deviation, how to study or how to calculate range that we have discussed over here. In next video we will discuss about the mean deviation, variance and coefficient of variance and standard deviation. So please like this video and subscribe my channel Pharma Planet if you are new to this channel. Thank you for watching this video.